Morning, friends. Welcome to our online class. Dear students, you know, in writing section, there are different kinds of topics: letter writing, paragraph writing, story writing, article writing. So, today we are going to learn article writing. So, what is article writing? Now you see the picture here. What is the picture? Evolution. Evolution is a theory of Darwin, that famous scientist. He has put the theory of evolution. What is evolution? Here you see the picture, the beginning position of human. Then afterwards, gradually, he has been developed up to this. Now he has many technologies like computer, mobile, so on. But now, what do you see? Here you see some benefits. Here you also see some benefits, but some losses are also here. So, because of this image, you see more use of mobile cell phone can put the person into trouble. Like this, he doesn't know where he is going, like this, into the ditch, isn't it? Now see, here also the second picture, you see all these fellows are very much busy in browsing mobiles, isn't it? All are humans. If they talk each other, then that is society or community. But here you see all are busy in mobiles. If they are standing near each other, but still they are not talking with each other, they are talking with cell phones, they are talking with non-living object, and they are not talking with all of them with living animals or human beings, isn't it? So now you got the idea what I mean to say. So here, that mobile is harmful as well as useful. So on this topic, on mobile, we are going to write a paragraph or article which is generally asked in examination for 5 marks. In this year, you are going to write 5 marks formal letter to the editor, and one of the paragraphs or articles. So today we will learn how to write that article. There is a particular format of an article. आर्टिकल राइटिंग का एक फॉर्मेट होता है. इसमें हेडिंग रहता है. हेडिंग में क्या रहता है कि हमारा हेडिंग जो रहता है, मतलब आर्टिकल को जो नाम देते हैं, वो ऐसा आई कैचिंग, यानी कि ऐसे प्रभावी चाहिए. इलस्ट्रेटिंग द सेंट्रल थीम्स, जो आर्टिकल का जो मीनिंग है उसके आधार पे एक साधारण स्पष्ट करने वाला हमारा आर्टिकल चाहिए. उसमें आर्टिकल का टाइटल, हेडिंग देखते ही हमें वो आर्टिकल किसके बारे में है ऐसा सचित्र या तो उदाहरण के साथ में वो ऐसा आर्टिकल का हेडिंग चाहिए. उसको बोलते हैं टाइटल या तो हेडिंग.
बाद में बाई लाइन. नाउ बाई लाइन इज न्यू phrase for you. Byline is not anything else, that is only writer's name under the title towards the right from the center. जो हम पेज पे लिखते हैं ना, पहले हेडिंग देते हैं फिर बाद में राइटर का नाम लिखते हैं. वैसे राइटर का नाम एंड में भी लिखते हैं, या तो जस्ट बिलो द टाइटल एट द सेंटर ending to the right side, or to this extreme left, or at the below at the end of the article also you can write that writer's name. But here in new format it is suggested that byline means writer's name under the title toward the right from the center. सेंटर से शुरू करते समय हम क्या करने का, ये अंडर द टाइटल टूवर्ड्स द राइट फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से शुरुआत करते हुए राइट साइड तक, ऐसा आप ये किसने लिखा है उसका नाम लिख सकते हैं. बाद में इंट्रोडक्शन, कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन टचिंग अपॉन द प्लस एंड माइनस ऑफ द टॉपिक. जो टॉपिक रहता है ना उसका शुरुआत, उसके फायदे नुकसान, मेरिट डीमेरिट प्लस माइनस क्या चीज़ें हैं, ऐसा उसका टाइटल के हिसाब से परिचयात्मक 3-4 लाइन 2-3 लाइन लिख सकते हैं, जितने मार्क्स का है वो हिसाब से. इसमें रेटोरिक क्वेश्चन, रेटोरिक क्वेश्चन का मतलब कैसे है कि उसका कोई आंसर सामने वाले ने देना ही चाहिए ऐसा नहीं. तो जो क्वेश्चन पूछने वाला रहता है उसको ही उसका मीनिंग या तो वो क्वेश्चन का आंसर उसको ही पता रहता है, वो सिर्फ एक वक्तृत्व स्किल के आधारित वो क्वेश्चन पूछता है. कि जैसे कि हाउ कुड आई बी स्टूपिड, मैं कितना मूर्ख हो सकता था. इसका मतलब क्या हुआ कि जिसने भी मुझे फंसाया उसमें मैं कितना मूर्ख हो सकता था, इसका आंसर मुझे पता है. सिर्फ एक ऐसा एक वक्तृत्व स्किल के आधार पे वो बोला जाता है. ऐसा जनरली एक अलंकारिक भाषा में ऐसा प्रश्न आप शुरुआत में ऐसे टाइटल के इसमें दे सकते हैं. या तो गिव सम स्टार्टलिंग फैक्ट्स, यानी कि सरप्राइजिंग कोई आश्चर्यचकित चीज़ें हैं उसको आप वैसे पुटअप कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में टाइटल को लेके. स्टैटिस्टिक्स यानी कि एनालिटिकल कोई फिगर डाटा है उसके बारे में, कि हाउ मेनी फॉलोअर्स ऑफ दैट रिलीजन इन डिफरेंट कंट्रीज, जैसे कि कितने लोग हैं वो रिलीजन के फॉलोअर्स अनुयायी. तो ऐसा ये नंबर फिगर के आधार पे ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं. जैसे मैंने बोला कि हाउ मेनी फॉलोअर्स ऑफ द रिलीजन इन डिफरेंट कंट्रीज, ऐसा. कोटेशन, या तो कोई किसी का डायलॉग रहता है, इफ़ यू आर फ्लेक्सिबल आई एम ऑल्सो फ्लेक्सिबल, ऐसा कोई एक पर्टिकुलर कोटेशन रहता है, किसी बड़ा आदमी ने बोला है. ऐसे बड़े ज्ञानी व्यक्ति का कोटेशन बार बार रिपीट होता है कि जो एक थॉटफुल रहता है. ऐसे इससे भी आप इंट्रोडक्शन आर्टिकल का कर सकते हैं. बाद में कंटेंट, कंटेंट में क्या रहता है, वो जो टॉपिक रहता है उसका थोड़ा डिटेल में देने का. इसमें भी आप ऐसे ABC 3 पार्ट्स कर सकते हैं. जैसे कि एक्सपोजिशन ऑफ टॉपिक, जो टॉपिक है उसके बारे में स्पेल आउट द वेरियस एस्पेक्ट्स टू द टॉपिक, मेरिट्स डीमेरिट्स कॉजेस कॉन्सिक्वेंसेस इफेक्ट्स एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस. मतलब टॉपिक का एक डिटेल में थोड़ा सा उसको शुरुआत में एक ओपन करने का, एक्सपोज करने का, उसमें का राज जो है उसके जो अलग अलग पहलू है एस्पेक्ट्स उसको ओपन करने का, उसके क्वालिटीज़ और उसके दोष क्या है, मेरिट्स यानी क्वालिटीज़, डीमेरिट्स यानी दोष, कॉजेस कारण क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि परिणाम क्या है, इफेक्ट्स एडवांटेजेस, ये एडवांटेज के फायदे क्या है, डिसएडवांटेज के नुकसान क्या है, ऐसे भी इसके परिणाम जो है वो आप बता सकते हैं. कॉन्सिक्वेंसेस और इफेक्ट्स का मतलब परिणाम, ऐसे वो टॉपिक के लेकर ऐसे शुरुआत कर सकते हैं. बाद में वाइंडिंग अप,
वाइंडिंग अप और ये कंक्लूजन जो दोनों है बी और सी, इसमें कोई इतना डिफरेंस नहीं है, ये दोनों एंडिंग पार्ट होता है। ये ऐसा इंट्रोडक्शन दिया, उसमें भी बहुत सारा ये टॉपिक को लेकर इंफॉर्मेशन आता है। फिर बाद में कंटेंट का जो दूसरा पैराग्राफ रहता है उसमें भी बहुत सारा डिटेल्स आ जाता है। और वाइंडिंग अप में क्या रहता है, ऊपर का जो चीज़ें हैं उसके बारे में थोड़ा आपकी राय क्या है, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसका दोनों साइड से टीकात्मक परीक्षण यानी कि क्रिटिसिज्म क्या कर सकते हैं, समीक्षण, वो रिकमेंडेशन आप क्या सुझाव दे सकते हैं, इसके बारे में आपका कहना क्या है, वो थोड़ा सा ऊपर के मामले में आप इधर डिटेल में देना। और कंक्लूजन में फिर जो ऊपर का है उसका एक समरी टाइप एक बताना, और उसमें थोड़ा आशावाद और एक सादा सूचना वगैरह, विनंती, रिक्वेस्ट, अनुरोध, अपील, विनंती ऐसा, या क्या हमने एक्शन लेना चाहिए कि जैसी वो प्रॉब्लम है तो सॉल्व हो जाएगा, और वो चीज़ अच्छी है तो फिर इसके फायदे समाज के लिए कैसे होंगे, तो हमने उसको कैसा इम्प्लीमेंट करना चाहिए, कैसा एक्शन में लाना चाहिए, वो चीज़ को कैसा उसको कृति में लाना चाहिए, ऐसा वो कंक्लूजन में रहता है। तो अभी हम डियर स्टूडेंट्स इसका एक उदाहरण देखेंगे। जैसे कि मैंने मोबाइल के बारे में जो बताया कि हम वी आर गोइंग टू राइट एन आर्टिकल अबाउट मोबाइल। तो अभी कैसे टाइटल जो बोला है आई कैचिंग, यानी कि एक उठावदार, प्रभावी, इलस्ट्रेटिंग द सेंट्रल थीम्स, और उसकी एक सेंट्रल आइडिया, उसका मेन मीनिंग क्या है, वो ऐसा टाइटल में ही आना चाहिए। आर्टिकल राइटिंग का पूरा मीनिंग ये टाइटल में आना चाहिए। जैसे मोबाइल के बारे में है तो क्या, मोबाइल फोन इज बोथ अ नेसेसिटी एज वेल एज एन इविल फॉर ह्यूमन बींग्स। मानव जाति के लिए ये मोबाइल फोन कैसे वरदान और कैसे शाप है। इविल यानी शाप, नेसेसिटी यानी कि जरूरत, या तो वरदान यानी कि कैसे फायदेमंद है, ऐसा दोनों, एज वेल एज यानी ऐसा भी और वैसा भी, तो ऐसे दोनों कैसे है वो बताना है। बोथ यानी दोनों। तो अभी ये टाइटल हो गया, ये जो मोबाइल के ऊपर जो हम पिक्चर दिखाए मैंने शुरुआत में, उसके ऊपर जो है ये मोबाइल फोन इज बोथ अ नेसेसिटी एज वेल एज एन इविल फॉर ह्यूमन बींग्स, ये टाइटल हो गया। फिर बाद में किसने ये आर्टिकल लिखा है, तो बाय लाइन, बाय लाइन यानी लाइन यानी ये लिखने का, तो बाय यानी किसने, ये लिखा हुआ किसने है, तो वो उसका नाम, जैसे कि एग्जाम्पल इधर बाय सौम्या, या तो कोई न्यूज़पेपर में क्या रहता है कि यू आर सुमित और विलियम और वंदना, यू आर सुनीता और सुनील, तो फिर जो नाम क्वेश्चन में रहेगा वही इधर बाय में आएगा। तो ऐसा राइटर्स नेम अंडर द टाइटल टुवर्ड द राइट फ्रॉम द सेंटर, तो ये जो टाइटल है उसके ऐसे सेंटर में देखो इधर लिख के बताया कि ये सेंटर में शुरुआत हुआ, इधर यहाँ शुरुआत हुआ, और फिर इधर राइट में ये ऐसा बाय सौम्य नाम खत्म कर दिया। तो फिर यहाँ से ऐसा स्टार्ट होती है, ऐसा वो सेंटर से स्टार्ट करते हुए इधर तक राइट साइड तरफ लिखने का, इधर नहीं लिखने का। कभी कभी इधर भी लिखते हैं टाइटल के नीचे, यहाँ यहाँ भी लिखते हैं, नहीं तो फिर एंड में भी लिखते हैं, पूरा आर्टिकल खत्म हो गया तो फिर ऐसे एंड में भी लिखते हैं, ये एरो इधर ऐसा आता नहीं है, तो फिर ऐसा एंड में भी एकदम आर्टिकल खत्म होने के इसमें भी लिखते हैं। लेकिन नए इसमें ऐसे सेंटर में लिखते हैं, तो फिर इधर सेंटर से शुरू करते हुए यहाँ ऐसे राइट साइड की तरफ, इधर राइट साइड तरफ एंड करते हुए लिखने का। अभी देखो इसका जो है इंट्रोडक्शन, अभी वैसे मोबाइल जो टॉपिक है इसका इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन टचिंग अपॉन द प्लस एंड माइनस ऑफ टॉपिक। टॉपिक के शुरुआत में ये क्या चीज़ है, ये टॉपिक किसके बारे में, उसका थोड़ा दोनों साइड से प्लस माइनस, राइट रॉन्ग, ऐसे दोनों साइड से थोड़ा शुरुआत में इंट्रोडक्शन करने का। या तो पुट अ रेटोरिक क्वेश्चन और गिव सम स्टार्टेड स्टार्टिंग फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स और कोटेशन, या तो फिर ऐसा कोई एक अलंकारिक प्रश्न भी आप
पुटअप कर सकते हैं कि वाई इज इट टू डिस्क्लोज और डिस्कस, जैसे कि आप इसका रेटोरिक क्वेश्चन बना सकते हैं, वाई इज इट नेसेसरी टू डिस्कस मोबाइल एज नेसेसिटी एंड इविल। तो ऐसा रेटोरिक क्वेश्चन बना सकते हैं, तो ऐसा शुरुआत कर सकते हैं। या तो फिर स्टार्टिंग फैक्ट्स, उसका शुरुआत में जैसे हाउ वाज अर्ली मैन, है ना, हाउ द डेवलपमेंट हैज़ हैपन, ऐसा उसका स्टार्टिंग फैक्ट दे सकते हैं। या तो फिर उसने कौन से आदमी ने इसकी खोज की है, ह्यूमन ने इसको कैसे, साइंटिस्ट ने इसको कैसे खोजा है, कैसा लाभ है, ऐसे फैक्ट्स वस्तु स्थिति दे सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स यानी कि उसका जो ब्यौरा है इंफॉर्मेशन कि हाउ मेनी पीपल आर यूजिंग नाउ डेज सेल फोन्स और मोबाइल्स, ऐसे स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। कोटेशन दे सकते हैं कि मोबाइल इज़ यूज़फुल एज वेल एज हार्मफुल, ऐसा कोटेशन यानी कि उसके ऊपर डायलॉग दे सकते हैं। तो जैसे अभी इधर देखो कैसे इंट्रोडक्शन किया है, ग्रेट मेनी थैंक्स गो टू द मॉडर्न साइंटिफिक मास्टरमाइंड यानी सुपर माइंड, who have brought before human beings a small and light mobile phone that can be taken everywhere with the greatest ease। ease यानी सोईस्कर यानी कि वेरी इजी, ग्रेटेस्ट ईज यानी वेरी इजी, ग्रेटेस्ट यानी वेरी, ईज यानी बहुत ही आसान। तो फिर ये बहुत सारे हमने एक थैंक्स देना चाहिए कि मॉडर्न साइंटिफिक मास्टरमाइंड्स यानी कि जो टेक्नोलॉजिस्ट है, जो टेक्नीशियंस है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, जिन्होंने ये मॉडर्न गैजेट्स बनाया है और आदमी के सामने बहुत ही छोटा और लाइट वेट वाला कि आदमी कहीं भी कैरी करके उसको आसानी से यूज़ कर सकता है, ऐसी चीज़ ये मोबाइल बनाई है। तो ऐसा ये इंट्रोडक्शन आप उसका स्टार्टिंग फैक्ट्स यानी कि ये चीज़ कैसे निर्माण हुई, ऐसे स्टार्टिंग फैक्ट्स या तो अमेजिंग, इसको आप स्टार्टलिंग भी बोल सकते हैं और स्टार्टिंग फैक्ट्स भी बोल सकते हैं। ऐसे अमेजिंग चीज़ें या तो फिर शुरुआत के उसके वस्तु स्थिति आप ऐसे यहाँ जैसे मोबाइल के बारे में उसका निर्माण कैसे हुआ ऐसा दिया है, ऐसे कर सकते हैं। शुरुआत इंट्रोडक्शन, we can have face to face talk with a man living in the remotest area, remoter the remotest, जैसे tall or the tallest। तो रिमोटेस्ट यानी दूर दरार, बहुत ही दूर दरार के जो लोग जंगल में भी रहते हैं जैसे डांग में, तो भी आमने सामने आप जहाँ नेटवर्क है तो बात कर सकते हैं। बट इट इज़ बीइंग मिस यूज्ड बाय मेनी, लेकिन आजकल उसका मिस यूज भी हो रहा है। तो ऐसे ये स्थिति दिया है, उसके प्लस ये माइनस, ऐसा ये प्लस माइनस आप इंट्रोडक्शन में ऐसा दे सकते हैं। ये हो गया इंट्रोडक्शन। ऐसे कोई भी टॉपिक का इंट्रोडक्शन आप प्लस माइनस उसके फैक्ट्स, रियलिटी, उसका संशोधन कैसे हुआ ऐसा दे सकते हैं। अभी उसका बीच में का जो डिटेल्स है कंटेंट वो कैसे, उसमें भी तीन है ना, एक्सपोजिशन ऑफ टॉपिक, बाद में वाइंडिंग अप और कंक्लूजन। तो पहला एक्सपोजिशन ऑफ टॉपिक, स्पेल आउट द वेरियस एस्पेक्ट्स टू द टॉपिक, मेरिट्स डीमेरिट्स, कॉजेस कॉन्सिक्वेंसेस, इफेक्ट्स, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। तो अभी ये मोबाइल के क्या क्या पहलू है, क्या क्या स्वरूप है, एस्पेक्ट यानी स्वरूप या तो पहलू, उसके मेरिट्स क्वालिटीज़ क्या है, डीमेरिट्स यानी कि उसके फॉल्ट क्या है, कॉजेस कारण क्या है, परिणाम क्या है, इफेक्ट्स इसका भी मतलब परिणाम क्या है, फायदे नुकसान क्या है, ऐसे आप डिटेल में ऐसा कंटेंट में डिटेल्स में दे सकते हैं। जैसे कि इधर दिया है, when we are in a state of immediate need of a person, mobile phone is at our service। अगर किसी व्यक्ति की ज़रूरत है, उसको बुलाना है, तो मोबाइल फ़ोन से आप बुला लीजिए, कॉल करके आप आपकी सर्विस में, सेवा में है हाजिर मोबाइल। We can know the well-being and other news about them in no time। किसी के बारे में अच्छाई या कोई उनकी खबर लेना है
तो इन नो टाइम यानी कि बहुत ही कम समय में आप वो जानकारी ले सकते हैं मोबाइल से। तो अभी ये मेरिट्स बता रहे हैं। Nowadays one can send money online to pay telephone bills। किसी के टेलीफोन बिल देना है तो ऑनलाइन पे कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल भर सकते हैं। इट सेव्स ऑफ लॉट ऑफ मनी, टाइम एंड एनर्जी। इसकी वजह से क्या है, ये किराया, गाड़ी का जो किराया है, फेयर वो देना, यहाँ से वहाँ जाना, पेट्रोल डीजल खर्च करना, पैसा इससे बचता है। मोबाइल से ही ऑनलाइन काम हो जाता है। टाइम, समय बचता है। एनर्जी, हमारी ताकत जो है, हमारा जो मेहनत है, आने जाने का जो तकलीफ है वो हमारा कम हो जाता है। इसलिए हमारी ताकत, एनर्जी, ऊर्जा बचती है, फिर हम अच्छे दूसरे पढ़ाई में लगा सकते हो। पीपल स्टार्टेड हैविंग अ मोबाइल फोन एज अ नेसेसिटी एंड प्रीवियसली एज अ स्टेटस सिंबल। और लोग जो है पहले इसको स्टेटस, कि मेरे पास अच्छा अच्छा मोबाइल है, आईफोन है, सैमसंग है, 50,000 का है, 1 लाख का है, 25,000 का मोबाइल है, तो ये एक स्टेटस सिंबल हो गया था कि मैं कितना बड़ा है, इसको बोलते हैं स्टेटस सिंबल, ऐसा उसका प्रतीक। और उसकी आवश्यकता क्या है, ऐसा भी इसका महत्व आया है। बट इट हैज़ डिसएडवांटेजेस एज वेल। तो यहाँ तक स्टेटस सिंबल तक ये मेरिट्स हो गए। और अभी इसके डीमेरिट्स क्या है, कि इसके नुकसान क्या है। तो व्हेन द लेक्चरर इज डिलीवरिंग हिज लेसन, समझो कोई टीचर लेक्चर दे रहा है, बीच में किसी का फोन आ गया और उसने फोन रिसीव कर गया, फोन रिसीव किया, तो क्या होगा, द रिंगटोन डिस्टर्ब्स द होल क्लास। तो रिंगटोन यानी कि क्लास में टीचर पढ़ा रहा है या डॉक्टर ट्रीटमेंट दे रहा है, बीच में रिंगटोन बज गया तो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो रिंगटोन जो है वो डिस्टर्ब करता है, उसकी बेल, क्लास में हो या कहीं भी हो। सम स्पेंड अ लॉट टाइम ऑन अननेसेसरी टॉक, कुछ अनावश्यक गप्पे मारते रहते हैं मोबाइल पे। विच कॉजेज डैमेज टू द ब्रेन, अपना ब्रेन खराब होता है उससे, डैमेज यानी खराब होना। सम पीपल यूज इट प्ले वीडियो गेम्स फॉर आवर्स टुगेदर। जैसे तुम बच्चे अगर मोबाइल का यूज़ अच्छा पढ़ाई के लिए, वीडियो देखने के लिए, पढ़ाई का मैथ, साइंस, इंग्लिश और डिफरेंट सब्जेक्ट्स का आप ये पढ़ाई के लिए उसका यूज़ किया तो बेनिफिटेड है। नहीं तो तुम वीडियो गेम, पबजी वगैरह कुछ देखते रहे तो फिर लॉस है। और इसकी वजह से लीडिंग टू ओबेसिटी, फिर आपका उससे क्या होता है, ये स्थूलपन, आपका बॉडी एकदम फैट हो जाता है, उसको ओबेसिटी बोलते हैं। बैठे बैठे खाना खाना और मोबाइल देखना, तो इसलिए फैट हो जाते हैं, ओबेसिटी यानी फैट। हियरिंग डिसऑर्डर्स, और ज़्यादा वो मोबाइल यूज़ करने से क्या होता है, आपका सुनने का भी डिसऑर्डर हो जाता है। तो सुनने का आपका ऑर्डर यानी कि डिसऑर्डर हो जाता है। सो इट इज़ फॉर अस टू डिसाइड टू मेक इट्स प्रॉपर यूज़। इसलिए हमने उसका प्रॉपर यूज़ करने का सोचना चाहिए, वो हमने निर्णय लेना चाहिए। तो ऐसा ये टॉपिक के बारे में थोड़ा सा ओपनिंग, हमारी जो राय है, हमारे उसके शुरुआत के ओपनिंग यानी कि एक्सपोजिशन, ऐसे विचार, फायदे नुकसान, मेरिट डीमेरिट, उसके गुण दोष, एडवांटेज डिसएडवांटेज यानी कि फायदे नुकसान, उसके परिणाम क्या है, कारण क्या है उसके, कॉन्सिक्वेंसेस और इफेक्ट्स यानी परिणाम, कॉजेस यानी कारण। तो ये सब ऐसे शुरुआत में देना चाहिए डिटेल्स में। बाद में देखो अभी जो सेकंड लास्ट एंडिंग पार्ट है, तो ये डिटेल्स में होने के बाद वाइंडिंग अप। गिव योर ओपिनियन, कमेंट्स, क्रिटिसिज्म, रिकमेंडेशंस, कॉल। आपकी राय देना, ओपिनियन यानी आपका दृष्टिकोण, आपके विचार, व्यूज़ क्या है, आपको क्या इसके ऊपर विधान करना है, दैट इज कमेंट। और क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म सिर्फ क्रिटिसाइज करना यानी कि दोष निकालना नहीं, उसके दोनों साइड से गुण और दोष यानी कि एप्रिसिएशन, और उसके मेरिट डीमेरिट क्या है जो पहले दिया है डिटेल में, इसके ऊपर आप खुद राय बनाना। ये भी आप ही लिखते हैं स्टडी करके, जो अभी प्रेजेंट जो समाज में स्थिति है इसको ही स्टडी करते हुए ये भी लिखते हैं। कोई भी आर्टिकल का टॉपिक ऐसा ही एक स्टडी करते हुए, ऑब्जर्वेशन करते हुए लिखना पड़ता है। ये आपका राइटिंग सेक्शन में लेटर हो, स्टोरी हो, पैराग्राफ हो, आर्टिकल हो, स्पीच हो, डिबेट हो, रिपोर्ट हो, नोटिस राइटिंग हो, उसमें आपके खुद के ही विचार रहते हैं।
और तो फिर ऐसे इसमें कैसे राय बना सकते हैं? इन टुडेज वर्ल्ड ऑफ इंस्टेंट कम्युनिकेशन, इंस्टेंट यानी इमीडिएट, कम्युनिकेशन यानी बातचीत। इन टुडेज वर्ल्ड ऑफ इंस्टेंट कम्युनिकेशन, द आर्ट ऑफ राइटिंग लेटर टू फ्रेंड्स, पेरेंट्स एंड कजिन्स इज लॉन्ग फॉरगॉटन। अभी आजकल जो बोलते हैं ना हम कि ये मोबाइल्स ने क्या किया है, अपने अल्फाजों का वजूद ख़त्म कर दिया है। अल्फाजों यानी शब्द, भाषा। हमारा जो पहले लेटर लिखते थे सेंटेंस में, जो खत लिखते थे, लेटर लिखते थे, पोस्ट में डालते थे, उसका अस्तित्व यानी कि वजूद ख़त्म कर दिया है लेटर राइटिंग का। तो ये आर्ट ऑफ राइटिंग लेटर टू फ्रेंड्स, पेरेंट्स एंड कजिन्स इज लॉन्ग फॉरगॉटन। लॉन्ग फॉरगॉटन यानी बहुत दिन से हम भूल गए हैं। इट शुड बी यूज्ड वाइजली। उसको हमने एक शानपन से फिर से यूज में लेटर राइटिंग हम लाना चाहिए। उसकी वजह से हमारे आइज़ के प्रॉब्लम, ईयर के प्रॉब्लम और हर एक दूसरे से इंसान के साथ जो बातचीत करने का जो एक अच्छी सोच है वो फिर से एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये मोबाइल से भी कर सकते हैं लेकिन इसके मिसयूज ज़्यादा है। और ये लेटर राइटिंग का स्किल में हमारा भाषा विचार सुधरते हैं और एक इंसान का इंसान से एक अच्छी तरह से उसमें एक अलग सा इंटरेस्ट रहता है नेचुरल। तो हमने फिर से इसको वाइजली पुटअप करना चाहिए, यूज़ में लाना चाहिए। ये तुम्हारा ऐसा ओपिनियन, कमेंट, क्रिटिसिज्म, रिकमेंडेशन, कॉल, कॉल यानी आपको जो बोलना है वो, ये ऐसे सब आप पुटअप कर सकते। सेकंड लास्ट वाइंडिंग अप में, वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है? ये भी कंक्लूडिंग ही रहता है, समरी टाइप ही रहता है, लेकिन थोड़ा सा आपको जो कंटेंट लिखा है उसके आधार पे, ये जो है ना कंटेंट के आधार पे थोड़ा सा उसके दोनों साइड से एक राय निकालते हुए पॉइंट आउट करना है। दोनों साइड से उसका एक सोचते हुए विचार आपको इधर पुटअप करना है, मांडना है। तो ऐसा ये एक सेकंड लास्ट समरी हो गया, उसको वाइंडिंग अप बोलते हैं। उसमें आपके कमेंट्स, ओपिनियन, क्रिटिसिज्म, रिकमेंडेशन, कॉल, ये सब आते हैं। अभी लास्ट कंक्लूजन यानी कि समरी, इसमें क्या है? कंक्लूड विथ होप। इसमें निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करना, और पॉजिटिव को और आगे कैसे कीप अप कर सकते हैं, कैसे उसको बढ़ावा दे सकते हैं, ऐसे आशा, या कोई गलत है तो उसको इशारा, ताकीद, वार्निंग देना, और किसी को एक अपील करना है, रिक्वेस्ट करना है, सुझाव यानी कि सूचना देना है, आपको कुछ उसको कॉल करके यानी कि उसको कुछ आपको बोलना है, कहना है वो, और उसको कृति में कैसे ला सकते हैं, ऐसा कृति में लाने के लिए आप जो बोल सकते हैं, दैट इज कॉल फॉर एन एक्शन, यानी कि ही इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन, यानी कि उसको कृति में लाना, अमल करना। तो ऐसे जैसे कि देयर हैज़ टू बी अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द यूज ऑफ सेल फोन दैट हैज़ ऑलमोस्ट बिकम पार्ट ऑफ अ पर्सनस डेली लाइफ दिस डेज यानी नाउ डेज, आजकल के दिन हम देखते हैं कि हर एक पर्सन के लाइफ में ये मोबाइल कैसे एक उसका हिस्सा बन गया है। लेकिन उसके लिए एक आचार संहिता होनी चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है आचार संहिता। मतलब क्या हुआ? रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी कि एक नियमावली होना चाहिए, एक रेगुलेशन होना चाहिए, कब यूज़ करना, कितना यूज़ करना, कौन से समय यूज़ करना। क्लास में या तो डॉक्टर एक पेशेंट को, एक ऐसे वीडियो आया था ना, जैसे कि डॉक्टर को कॉल आता है, वो पेशेंट को ट्रीटमेंट देता है, फिर वो नर्स को देता है, नर्स दूसरे को देता है, गोली लाने के लिए बोला, उसके नीचे का सिपाही को देता है, सिपाही को अर्जेंट कॉल आता है फ़ोन का, वो रिसीव करता है, और दूसरे को बोलता है, वो दूसरे को भी कॉल आता है, वो भी भूल जाता है, फिर बाद में पेशेंट मर जाता है। तो ऐसा उसका कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता, उसका एक लिमिटेशन जो है वो होना चाहिए, वो देखना चाहिए। द यूज कैन नॉट बी प्रिवेंटेड व्हेन द गैजेट इज बिकमिंग चीपर एंड कमिंग विथ मोर एंड मोर एडेड फीचर्स while the costs are coming down year after year। हर साल, एक साल के बाद एक साल, हम ऐसे बहुत सालों से देखते हुए आ रहे हैं
कि उसकी कीमत हर साल कम होती जा रही है। चीप रेट में मोबाइल मिलने लगे हैं और उसके अंदर बहुत सारे फैसिलिटीज़ आए हैं, इसलिए कोई उसको टाल नहीं सकता, ये हमें मालूम भी है। लेकिन तो भी एवरीबडी शुड यूज़ मोबाइल इकोनॉमिकली। इकोनॉमिकली यानी एक कम मात्रा में उसका यूज़ करना चाहिए, उसको बोलते हैं इकोनॉमिकली। और वाइजली यानी कि होशियारी से उसका यूज़ करना चाहिए। अवॉइडिंग इनकन्वीनियंस टू वन सेल्फ एंड फेलो बींग्स। और खुद भी उसका इनकन्वीनियंस यानी कि असुविधा नहीं होना चाहिए, ऐसे हिसाब से खुद भी और अपने जो मित्र परिवार है उनके साथ भी इसका असुविधाजनक यूज जो है, उसका उपयोग है असुविधाजनक, किसी को तकलीफ होगा उसको बोलते हैं इनकन्वीनियंस, यानी कि असुविधाजनक, ऐसा यूज उसका टालना चाहिए। अवॉइडिंग यानी टालना। तो इस तरह से ऐसा आप क्या कर सकते हैं, ये आर्टिकल लिख सकते हैं, ऐसा मैंने आपको समझा दिया। अभी और एक दूसरा सैंपल करके एक आर्टिकल आपके लिए दिया है, एक एक्स्ट्रा, आप उसको पढ़ लीजिए। उसके जैसा ही वो इधर दिया है, मतलब ये जो है यहाँ देखिए, क्या बोलते हैं, राइट एन आर्टिकल फॉर अ न्यूज़ पेपर इन अबाउट 150 to 200 words on the topic the problems of unemployment in India। तो फिर द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, इधर ये शुरुआत में ये टॉपिक हो गया, किसने लिखा, बाय एक्स वाई जेड। इधर लिखने वाला का नहीं दिया इसलिए वो इमेजनरी ऐसा लिखा है, लेकिन पेपर में लिखते हैं कि सुहानी लिख रही है या सुहाग लिख रहा है, तो जो पेपर में होगा उसका नाम लिखने का है ना, ये राइटर्स ने। फिर ऐसा इंट्रोडक्शन करने का, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स द प्रॉब्लम ऑफ प्रोवाइडिंग वर्क टू दोज हु आर विलिंग टू वर्क, ऐसा वो इसके बारे में इंट्रोडक्शन करने का, मेरिट डीमेरिट। और फिर बाद में उसका इसका कंटेंट एक्सपोजिशन जो है उसका डिटेल्स में देना, फिर बाद में इसका एंडिंग पार्ट और कंक्लूजन पार्ट जो है वो ऐसा लास्ट में दिया है। तो वंस अगेन यू रीड बोथ द सैम्पल आर्टिकल्स, जो इधर आपके लिए मतलब जो समझा दिया है वो पॉइंट के अनुसार, ये भी पढ़िए। और बाद में आप ये सब फिर से देखिए, मैं ये आपको वीडियो डाल दूंगा एक्सप्लेनेशन का। और फिर ये सैंपल दूसरा है वो भी पढ़ लीजिए, और कोई तकलीफ है तो मुझे बताने का, ठीक है। और आप लगे तो इसके बारे में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन आवर कंट्री, इसके ऊपर आप एग्जाम्पल के तौर पे आर्टिकल जैसे अभी ये पॉइंट बताए वो हिसाब से लिख के देखिए। और कोई आपको प्रॉब्लम है तो मुझे पूछिए, और वैसा लिख के आप व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।